Hello everyone, welcome to FT Plus Academy for Civil Services. So in this video, we are going to discuss the strategic preparation for OPSC OS Prelims 2023. As you all know that almost 30 days are now left for your prelims exam, which is scheduled on 27th of the October. So most of the aspirants would have this question now, what should be our strategy for this remaining 1 month and so? And also we will be discussing the approach on the final day, that is your exam day, and how the aspirant should approach the examination. So let's begin. So first thing that I would like to discuss is your preparation. What should be the preparation strategy? Now, in this remaining 1 month, the focus should be on revision, first thing. Second, on practice. We will discuss each of these in detail. And thirdly, taking test. Okay, so let us take the first one. What does revision mean? So here under revision, what you are going to do, so we will be discussing the priority areas. So we have done analysis of your past papers, say from the last decade, 2011 onwards. So for example, from history, which are the focus areas that you need to concentrate more upon? So on the basis of that analysis, your priority should be those key areas, those focus areas. So your revision should be to more oriented towards those areas. ठीक है, अब अगर किसी फॉर एग्जांपल द पॉलिटी सब्जेक्ट की बात करें, सो देर आर ऑलमोस्ट 24-25 क्वेश्चंस इफ दे आर कमिंग फ्रॉम योर पॉलिटी. So most of your the time, remaining time, as well as your orientation should be more towards polity, right? So we will be discussing subject by subject what should be the focus area. Second, after you have done revision, simultaneously you should also be practicing. Okay, so prelims, in the prelims exam, practice is a must. So what are the sources of practice? One is your PYQs and the second is your test series. Okay, test series, test papers. So you have to do thorough practice. So simultaneously revision is going on, simultaneously you are practicing and giving test. Apart from this, you will also be focusing on revising your current affairs. See, there are number of questions, ठीक है, direct, indirect, coming from the current affairs also. ठीक है, if you have gone through the previous year papers, you must have seen how OPSC has directly copied statements from sources like PIB, from newspapers. So if there is a newspaper article coming, they have directly copied the content of that newspaper article into statements 1, 2, 3. So there is 100% match. So you should be thorough with those sources. For example, one source would be your gazette, OPSC gazette, as well as you can go through the IS gazette of 1 year, last 1 year. ठीक है, तो इस चीज पे अपना फोकस बहुत रखना है. सेकेंडली, देर आर सर्टन काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक अवार्ड्स, persons in news, days, important days. For this also, you should refer to the gazette. Apart from this, you can refer to any yearbook. Okay, there are standard books for these things, so you can refer to those. Lastly, do not ignore CSAT. Okay, many a times it has been seen that though it is a qualifying paper, I agree with that, it is a qualifying paper, but it requires focus. तो ऐसा नहीं है कि बस मैंने आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट आई विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम. इट इज क्वालिफाइंग पेपर, 66 मार्क्स लेने हैं, तो आई विल बी इजिली एबल टू डू दैट. So you should not have that overconfidence. So even if you believe that yes, I have the confidence, I will crack it, still you do practice. Devote say 1 to 2 hours, okay, and practice, give test on a regular basis. Okay, so in a nutshell, what your focus would be on the remaining time for these remaining days? First, you will be focusing on revision. Second, you will be focusing on practice, and thirdly, you will be giving test. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, मैनी को एस्पिरेंट्स वुड बी हैविंग दिस क्वेश्चन कि सर अब नया क्या पढ़ना है. सी, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 1 year. ठीक है, वन एंड हाफ, सम ऑफ द एस्पिरेंट्स माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर मोर टाइम ऑल्सो. सो नाउ इज द टाइम टू कंसोलिडेट. नाउ इज नॉट द टाइम टू डू समथिंग न्यू.
जितना आपने पढ़ा है तो अब हमें उसका एडवांटेज उठाना है। वी हैव टू मेक श्योर जो भी हमने पिछले एक साल में तैयारी की है, आर प्रिपरेशन, वी हैव टू सॉलिडिफाई इट, वी हैव टू कंसोलिडेट इट, वी हैव टू इनहांस। सी, अगर आपने कुछ पढ़ा है एंड आपने रिवाइज नहीं किया है तो वहां पर फिर एग्जाम के टाइम पे वो चीज एग्जाम प्रेशर की वजह से नहीं आएगी यार। ठीक है, सो देयर माइट बी द केस यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द फैक्ट्स। ठीक है, या आप कंफ्यूज हो रहे हो चीजों लोग को लेके। सो दैट सिचुएशन शुडंट अराइज, फॉर दिस रिवीजन इज अ मस्ट। ठीक है, नाउ कम मूविंग फॉरवर्ड। ना हाउ टू प्रिपेयर द टाइम टेबल। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन, ठीक है, उसके बेसिस पे यू विल बी रिफाइनिंग योर टाइम टेबल। अब ये नहीं है कि मैंने आज सुबह में उठा तो मैंने आई डिसाइडेड दैट आई विल बी स्टडिंग पॉलिटी टुडे। ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी प्लान, आई जस्ट रैंडमली पिक्ड अप अ बुक एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट और रिवाइजिंग इट। सो यू विल बी डिवाइडिंग द एंटायर सिलेबस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, again I would repeat, according to priority. And how the priority would be decided? On the basis of the analysis that we have done and we will be discussing in the following slides. तो अगर पॉलिटी पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो जो मेरा टाइम टेबल होगा उसमें मेरा ज्यादा फोकस पॉलिटी पे रहेगा। अगर ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मेरा फोकस ज्योग्राफी की रिवीजन पे रहेगा। सी, एट द एंड ऑफ द डे योर टास्क इज टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये एक आपका एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि मेरे को सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो यहाँ पर यू हैव टू बी सेलेक्टिव। जहां पर मुझे ज्यादा आउटपुट मिलेगा रिवीजन से, मैं वो चीज पे फोकस करूंगा। यस, तो you what you will be doing daily at least 12 hours of study is a must in the remaining time. अब उसको कैसे करना है डिवाइड? So you will be having slots. ठीक है, now some students like to have 3 hour slots. I would say you should have 2 hour slots. मिनिमम 2 hour स्लॉट्स होने चाहिए। एंड जो आपका एग्जाम का टाइम होता है, ठीक है, देर आर 2 सेशंस इन द एग्जाम, मॉर्निंग सेशन एंड फोरनून सेशन। तो उन 2 घंटे जो आपका मॉर्निंग सेशन होगा, GS1 होगा, एंड आफ्टरनून वाला जो आपका सी सेट होगा, तो वहां उस टाइम पे आपका स्लॉट पक्का होना चाहिए, स्टडी का स्लॉट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यू गेट अप अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग, तो वहां से आप अपना टाइम शुरू करो कि आपने पहले मॉर्निंग में 2 hour का एक रखा, स्लॉट रखा, उसके बाद आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट यू हैव अ 2 hour स्लॉट एंड सो। तो ऐसे यू कैन हैव 6 स्लॉट्स ऑफ 2 hours ईच इन द एंटायर डे। ठीक है, अब करना क्या है, तो आप ऐसे कर सकते हो डिवाइड कि जो आपका मॉर्निंग का सेशन है, ठीक है, मॉर्निंग का स्लॉट है, यू आर रिवाइजिंग द मेजर सब्जेक्ट्स इन दैट। ठीक है, यू हैव टू डिवाइड, दिस विल बी योर ओन डिस्क्रिशन, इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिटी रखा, ठीक है, तो पॉलिटी रखा, नाउ इन दैट स्लॉट द नेक्स्ट स्लॉट विच coincides with the real exam slot, I will be giving test or I will be practicing questions। ठीक है, सिमिलरली जो आपका इवनिंग वाला स्लॉट होगा वहां पर मैं आप प्रैक्टिस करूंगा या फिर अपना टेस्ट रखूंगा। ठीक है, तो टोटल 6 स्लॉट्स इन अ डे। एंड अपार्ट फ्रॉम रिवीजन यू विल बी गिविंग टाइम टू practice as well as to test. You will also be giving time to CSAT. Now here I am talking especially for those students who are weak in CSAT. तो आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड्स आई हैव रिटन 1 to 2 hours ऑफ डेली प्रैक्टिस। तो जिनको कॉन्फिडेंस है दे कैन रिवाइज, दे कैन ओनली प्रैक्टिस फॉर 1 hour, बट जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जो वीक है सी सेट में, दे बिलीव कि वो 6 जो आपका कट ऑफ है उसको भी क्लियर करने में उनको मतलब डिफिकल्टी हो सकती है, तो दे शुड गिव मोर टाइम। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होता है तो जो भी आपने 1 year का प्रिपरेशन किया है दैट विल गो वेस्ट। ठीक है, तो यू शुड रियलाइज द ग्रेविटी की सी सेट की जो इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस है वो कितना ज्यादा है। ऑल्सो यू शुड डिवोट टाइम फॉर योर करंट अफेयर्स। ये नहीं कि मैं एग्जाम के जस्ट 1 week पहले आई विल जस्ट गो थ्रू द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, नो, गिव डेडिकेटेड स्लॉट, वन वन स्लॉट डेली बेसिस पे टू करंट अफेयर्स एज वेल।
focus should be more from January 2024 till September 24, but aspirant should revise at least the current affairs of the past 1 year. पास्ट 1 ईयर आप पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो, और अगर टाइम है आपने उतना भी किया हुआ है देन यू कैन गो फॉर 1.5 years. ठीक है, बट द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वुड बी लो. इतना पीछे के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. ठीक है, so this is how you are going to prepare your timetable. So again, to summarize, minimum 12 hours first thing, so that means 6 slots of 2 hours each. 2 slots every day should be such that they coincide with the real exam time. जो आपका मॉर्निंग में GS1 होता है उसमें एक स्लॉट रखना है, और जो आपका आफ्टरनून में CSAT का स्लॉट होता है उसमें आप एक अपना स्लॉट रखो. ठीक है, सो 6 slots of 2 hours each, एंड गिव एम्पल टाइम फॉर योर अदर, जो आपका स्लीप हुआ, ईटिंग हुआ, बी इट योर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ऐसा नहीं है कि मैं लगातार पढ़ रहा हूँ. नो, देयर शुड बी सफिशिएंट ब्रेक्स इन बिटवीन. बट ये नहीं कि 2 hours की सिटिंग है तो 2 hours की सिटिंग में भी यू आर टेकिंग ब्रेक. नो, अगर 2 hours पढ़ना है तो विद फुल कंसंट्रेशन यू हैव टू रीड. ठीक है, सो lastly, there should be nothing new to be read now, only consolidation through revision, practice, and giving test. Yes. Now we will be discussing the important subjects one by one. What should be the focus areas? Okay. So as you can see on your screens, first of all, we will be taking history, and under history, ancient India. So अगर आप number of questions देखो, so they vary between one. ठीक है, 0 क्वेश्चन भी आया है किसी साल में, एंड अप टू 6. तो मैक्सिमम 6 क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम एंशियंट इंडिया, एंड हियर द प्रायोरिटी एरियाज वुड बी योर हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, योर वैदिक एज, योर मौर्य, संगम एज, एंड गुप्ता पीरियड. ठीक है, तो ये आपके एंशियंट इंडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो ये इन चीजों पर योर फोकस शुड बी मोर. सो व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग, यू विल बी डिवोटिंग टाइम, यू विल बी मेकिंग टाइम टेबल, तो आपने इन एरियाज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है. ठीक है, सो दीज आर द मेजर हेडिंग्स. तो इनके अंदर सब टॉपिक्स होंगे, यू हैव टू रिवाइज देम थोरोली. सो आपके जो हिस्ट्री पोर्शन होता है, तो एंशियंट हिस्ट्री में से 6 क्वेश्चंस आर यू कैन एक्सपेक्ट. ठीक है, एंड गिवन इफ वी सी द लास्ट 5 पेपर्स 2018 से अगर हम बात करें, तो सिर्फ 2022 में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, वरना 0, 1, 3 ऐसे रहा है. ठीक है, तो again I would say 3 to 6 questions can be expected from this ancient India. Yes. Now moving to medieval India. So here earlier the number of questions used to be high. So if you see 2011 9 questions were there, 2020 में 7 questions थे, but 2021 was a exception year because only 1 question came from this area. ठीक है, बट वो एक्सेप्शन है. अगर आप बाकी देखो तो 4 से कम क्वेश्चंस नहीं आए हैं. तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिवल इंडिया आल्सो. एंड व्हाट वुड बी द फोकस टॉपिक्स हियर? सो द फोकस शुड बी मोर ऑन योर दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, द मूवमेंट्स, द भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, एज वेल एज द मराठास. तो यहाँ पर आपको फोकस करना है. ठीक है, नाउ हियर द फोकस व्हेन आई एम सेइंग मेडिवल इंडिया, सो यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. वो साइमल्टेनियसली आपका वहां पर रहना चाहिए. नेक्स्ट इज योर मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया, अब यहां पर क्या है, सी अर्लियर इन 2016 से देयर वर 12 क्वेश्चंस, बट उसके बाद हम 8 क्वेश्चंस को क्रॉस नहीं किया. ठीक है, तो अगेन द रेंज वुड लाई बिटवीन 5 to 8. सो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 5 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न इंडिया आल्सो. तो यहां पर आपका क्या रहेगा, जो जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट होता है वहां से ज्यादा फोकस करना है आपको. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो यू कैन हैव अ ग्लांस थ्रू पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स एज वेल, बट द की फोकस शुड बी ऑन स्पेशली ऑन एट दोज एरा विच इज पोस्ट आईएनसी. जब आपका 1885 में आईएनसी बना था उसके बाद के ऊपर ज्यादा फोकस करना. सो नाउ इफ यू सी द टोटल हिस्ट्री पोर्शन, सो अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिस्ट्री. तो 100 में से 10 to 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन. राइट, मूविंग फॉरवर्ड.
नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी को कैसे सेग्रीगेट करेंगे अपन? ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। सो व्हेन आई टॉक अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी, आई एम आल्सो इंक्लूडिंग द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज अराउंड 6 to 9। ठीक है, तो उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो हेयर द फोकस वुड बी ऑन की कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, रिलेटेड टू फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज पे और फोकस करना है, दैट देर इज इंटरलिंकेज बिटवीन द टॉपिक्स। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ही विजिट्स सर्टन कंट्रीज, ही इज मेकिंग विजिट टू सर्टन कंट्री, तो उस कंट्री से रिलेटेड दे कैन आस्क यू ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स। सिमिलरली इफ देर आर कन्फ्लिक्ट्स अकरिंग एट द ग्लोबल लेवल, जैसे मिडल ईस्ट हुआ, तो साउथ चाइना सी हुआ, सो दे कैन ऑल्सो आस्क ज्योग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। ठीक है, तो उस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? So in 2018 there were 11 questions, so that many questions I do not expect, given the analysis of the past 4 5 years. So around six you can easily expect from this particular area. Now from the Indian geography, the more again the focus would be on the physical features, relief features, climate, agriculture and minerals. ठीक है, तो यहाँ पर they can be, there would be more factual questions. Analytical questions would be less, the factual questions would be more. And see, last in the your last paper 2022 paper, 10 questions came from this area. ठीक है, 2021 में only 3 questions and there was 300% jump, 3 से सीधा 10 पे आ गए। सो देर इज नो डेफिनेट कि वो एनी ईयर कैन बी एक्सेप्शन, बट हमें ये मान के चलना है कि गिवन द एवरेज तो अराउंड 5 to 7 वी कैन एक्सपेक्ट from Indian geography. Now, if we see the total again, so the total around 16 came last year, उससे पहले आपके 9 questions थे, उससे पहले 14 थे, तो एवरेज वही 12 to 16 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, तो दो बोथ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15, 12, 10 to 15 इन हिस्ट्री, 12 to 16 इन ज्योग्राफी। तो ये रहने वाला है, तो दोनों एकदम मतलब सिमिलर टाइप ऑफ, आप इसको जब आप रिवीजन करोगे तो यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू दीज सब्जेक्ट्स। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इन ज्योग्राफी एज वेल एज हिस्ट्री, दीज आर फैक्चुअल, द क्वेश्चंस वुड बी फैक्चुअल इन नेचर। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका फैक्ट्स होंगे उनको रिटेन करना, रिवाइज करके रिटेन करना, दैट इज अ टास्क, डिफिकल्ट टास्क, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट कि एग्जामिनेशन के टाइम पे, फॉर एग्जांपल मिनरल्स पे आया लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनरल, या रिजर्व्स कहाँ पर सबसे ज्यादा हैं, तो उन क्वेश्चन में रिटेंशन पावर शुड बी मोर। And for revision, I would suggest, if you haven't done till now, make tables for these kinds of facts. Make tables, उससे retention ज्यादा होती, right? Now coming to Indian polity, now this particular subject, ये बहुत almost 1/4 of the paper आपका इसी particular subject से आने वाला है। ठीक है, so when I talk about Indian polity, I am also including related aspects like governance etc. तो इसमें क्या है, अगर आप पिछले 2 साल का देखोगे, ठीक है, तो almost 25 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और अगर हम 11 से देखें तो 19, 15, 16, 14, तो 15 तो मिनिमम है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चंस तो मिनिमम है। एंड आई वुड से ये जो इंडियन पॉलिटी होता है, इट इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। यहाँ पर योर एक्यूरेसी, योर अटेम्प्ट शुड बी 100%, फर्स्ट थिंग। एक्यूरेसी शुड बी मोर देन 95%। ठीक है, तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपका टारगेट होना चाहिए, अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एटलीस्ट मेरे 22 के अराउंड ठीक हो। अटेम्प्ट तो सारे ही करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर इस इंडियन पॉलिटी से आने वाला है, इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड आपके सोर्सेस हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, और जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके ओवरऑल स्कोर में, राइट? सो मोर फोकस, एंड यहाँ पर फोकस किस चीज पे करना है, ऑन योर एस्पेक्ट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज अपने आप हो जाता है रिवाइज। Then you should also focus on your parliament legislatures. ठीक है, then institutions,
institution based questions you can expect. They can be constitutional bodies, they can be non constitutional also. फिर थर्ड टायर के ऊपर फोकस होना चाहिए. सो बेसिकली यू हैव टू रिवाइज द की एरियाज. पॉलिटी के जो भी ये आप स्लाइड पे देख रहे हो अमेंडमेंट्स हुआ, तो दीज आर द की एरियाज, सो योर फोकस शुड बी मोर अपॉन दैम. ठीक है. एंड इट हैज बीन एन इलेक्शन ईयर. इलेक्शन स्टेट में भी हुए थे, आपके सेंटर में भी हुए, तो वहां से भी क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. इंडियन इकोनॉमी में 2011 में दे आस्क्ड 25 क्वेश्चंस, बट उसके बाद से द ग्राफ इज अराउंड 10 to 13, 10 to 14. 2021 वाज एन एक्सेप्शन वेयर दे आस्क्ड 18 क्वेश्चंस. ठीक है. तो यहां पर यू कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा 10 के अराउंड क्वेश्चन रहेंगे, 10 से ज्यादा होंगे, बट 10 to 12 के बीच में यू कैन एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चन. अब यहां पर भी दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आइदर कंसेप्चुअल विच वुड बी डायरेक्ट क्वेश्चंस. सेकेंडली दे कैन आस्क यू फैक्चुअल क्वेश्चंस, एंड दीज फैक्चुअल क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम your current affairs also, or they can also be from your schemes which were earlier in the news. Earlier in the news means जो वेल नोन स्कीम्स हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हुए, गरीबी हटाओ, दीज वर फ्रॉम योर 1970 ऑनवर्ड्स. ठीक है. तो वहां से जो स्कीम्स हैं, जो हमारी रिनाउंड स्कीम्स हैं जो चलती आ रही हैं, उन पे भी फोकस करना है. अभी सिर्फ करंट अफेयर स्कीम्स पे नहीं करना है. ठीक है. सिमिलरली इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हुई, तो हमारे इंडिपेंडेंस से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आ रही हैं, तो वो फोकस रहना चाहिए. और करंट अफेयर्स पे कैसा फोकस रहेगा, जैसे इन्फ्लेशन ट्रेंड हुए, तो दीज दी द लेटेस्ट, या आपके रेट्स हुए, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स, तो द लेटेस्ट वंस यू शुड बी अवेयर ऑफ. ठीक है. एंड व्हाट वुड बी द की फोकस एरियाज, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. राइट. एनवायरमेंट. ठीक है. सो एनवायरमेंट, नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर लेस देन 10. ठीक है. तो अभी तक हमने किसकी बात की, हमने हिस्ट्री की बात की है कि 10 to 15 का वेटेज रहेगा. हमने ज्योग्राफी की बात की है, 12 to 16 का वेटेज रहेगा. हमने पॉलिटी की बात की है, जहां पर ऑलमोस्ट 1/4 आपका पेपर पॉलिटी से आएगा. उसके बाद हमने इकोनॉमी की बात की है, अगेन 10 to 12 का रहेगा. अब एनवायरमेंट पे आते हैं, तो एनवायरमेंट में द टिल्ट इन द लास्ट 4-5 years हैज बीन लेस देन, मतलब सिंगल डिजिट क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. पहले 12 और 2017 और 18 में अगर आप देखोगे, तो ऑलमोस्ट 17 and 12 क्वेश्चंस वर देयर, बट 4 सालों से तो नहीं है. तो हम वही मान के चलेंगे कि 5 से 8 के बीच में क्वेश्चंस रहेंगे. और यहाँ पर आपका फोकस रहना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल पार्क्स के ऊपर. अगेन बोथ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. Direct conceptual questions can also come and your factual can also come. अब factual वाले, आपका जो ओरिएंटेशन है वो करंट अफेयर्स पे ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. सम स्पीशीज वर इन द न्यूज, नेशनल पार्क्स वर इन द न्यूज, आपका वेटलैंड्स, वेटलैंड्स अब कितने ज्यादा एडिशन हो रहा है रामसर साइट्स में, तो उस पे फोकस रखना है. ठीक है. अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, दैट इज नेचर, नेचर रिलेटेड, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए. आपके स्टेट बेस्ड जो आपका नेशनल पार्क्स हैं या रिजर्व्स हैं, उस पर फोकस होना चाहिए. ठीक है. तो these are the priority areas that you should be focusing upon from environment. Now coming to general science, again we can divide general science into different subjects. Physics की बात करें, तो 5 क्वेश्चंस थे, उससे पहले 2, 7, 7. तो फिजिक्स से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस इजीली. ठीक है. तो आई विल बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स 5. ठीक है. तो फोकस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर फोकस रहा है, ऑप्टिक्स के ऊपर फोकस रहा है, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर रहा है. एस्ट्रोनॉमी बेसिकली आपको स्पेस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा. ठीक है. हमारी इतनी सैटेलाइट्स हो रही हैं, अभी रिसेंटली देयर वर 4 न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च. ठीक है. इन अनाउंस्ड, कैबिनेट ने अप्रूव किए थे. तो यू हैव टू बी थोरो. अगर चंद्रयान 4 की बात हो रही है, तो चंद्रयान 1, 2, 3. ठीक है. तो सिमिलरली अगर कोई न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल की बात हो रही है, तो उसका बैकग्राउंड, हमारा इंडिपेंडेंस के बाद से क्या लॉन्च व्हीकल्स रहे हैं, PSLV हुआ, GSLV हुआ, तो सबका आपको आइडिया होना चाहिए.
फिर आपका वीनस ऑर्बिटर मिशन की बात हुई है, तो आपको वीनस प्लेनेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली गगनयान की बात हो रही है, तो गगनयान क्या है एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज क्या है वो पता होना चाहिए। एंड इन द फैक्चुअल थिंग्स यू शुड नो कि ये पर्टिकुलर मिशन कब लॉन्च होगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस एज आई सेड टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ऑल्सो, कि ये पूछते हैं डायरेक्टली आपके जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में स्टेटमेंट होगी कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 36 मंथ्स, वो डायरेक्ट स्टेटमेंट डाल दी, 36 वर्ड 48 कर दिया। ठीक है, तो उस चीज पे फोकस यू हैव टू डू। इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी नाउ, बायोलॉजी में 2022 में 0 क्वेश्चन, 2021 में 2, 20 में 7, 19 में 7। तो अगर आप देखो 18, 19, 20 में देर वॉज 3 इयर्स में काफी क्वेश्चंस आए। फिर अब थोड़ा सा गैप हो गया, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट कि क्वेश्चंस आएंगे, तो अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एरिया, बायोलॉजी। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, सो देर वर ऑलमोस्ट 1 to 5 क्वेश्चंस इन द लास्ट 4-5 इयर्स। एंड ओवरऑल अगर अब हम बात करें साइंस की, साइंस की बात करें, आई हैव नॉट इंक्लूडेड टेक्नोलॉजी पर से, वो मैंने करंट अफेयर्स में माना है, क्योंकि करंट जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली करंट अफेयर्स ही आते हैं। ठीक है। तो जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 2 सालों में द नंबर हैज बीन ओनली 5। बट अगर उससे पहले की बात करें 4 सालों की, तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन, 17, 19, 21 क्वेश्चन वर दिया। तो ये ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 5-5 आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आ सकते हैं जनरल साइंस से। 10 का एवरेज मान के चलो आ सकते हैं, तो मैं मेरा फोकस उतना ही होगा। ठीक है। अब ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि पिछले 2 साल में अगर 5-5 आए कि दोबारा 20 आ जाएं। ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि 10 आ सकते हैं, आने को तो कितने भी आ सकते हैं, दैट इज नॉट, वो तो पॉसिबल, एक पॉसिबिलिटी वाली बात हो जाती है। बट while you are preparing the timetable, while you are focusing on this subject, you will be assuming that around 10 questions would I can expect from general science. I am talking about general science. ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में अब यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड कर रहा हूँ मैं करंट अफेयर्स में। फर्स्ट थिंग, आपका सब्जेक्ट्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे कैसे आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पे आ सकते हैं, कंट्री स्पेसिफिक आ सकते हैं। डिफेंस, तो आपका मिसाइल्स हुए, आपके ड्रोन्स हुए, आपकी एक्सरसाइजेज हुए, मल्टी बायलेटरल मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज, वो सब। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी हुई, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डीप फेक्स हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूँ अंडर टेक्नोलॉजी। देन आपका सर्वे, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, बोथ इंडिया एज वेल एज योर ओडिशा। वेरियस इंडिसीज, जो आपके इंडेक्स होते हैं, आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हुआ, डेमोक्रेसी से रिलेटेड हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट से हुआ, हेल्थ से हुआ। देन अवार्ड्स, प्राइजेस, वेरियस समिट्स, पॉलिसीज, बुक्स, पर्सन्स इन न्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ देन योर स्टेट रिलेटेड एंड इंडिया स्पेसिफिक स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, वो सब चीजें। अब क्या है, अब इनको करना कैसे है, दैट इज द क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग, पहले करते हैं स्टैंडर्ड बुक से आपका ओपीएससी का जो एएस गैजेट है वो आप रिवाइज करोगे, स्पेशली फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी टिल सितंबर। सिमिलरली यू कैन गो थ्रू द आईएएस गैजेट। ठीक है। उसको अब इनको पढ़ना कैसे, यू हैव टू बी सेलेक्टिव। आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, यू आर रिवाइजिंग फॉर प्रीलिम्स, तो आपने एनालिटिकल चीजें को नहीं करना है। अगर वो करने लगे तो सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। सो फोकस ऑफ रिवीजन शुड बी ऑन प्रीलिम्स ओरिएंटेड थिंग्स, जो आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, उस पर आपका फोकस रहेगा। सो दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वोंट टेक मच टाइम। Third source would be, as I said, especially for those areas like books, persons in news, awards, prizes, etc. इसके लिए you can refer to some standard book like मनोरमा ईयर बुक हुआ, या कोई भी आपको जो अच्छा लगता है जिसमें इसका सेग्रीगेट आपको मिल जाएगा, एक कंसोलिडेटेड एक ही सोर्स मिल जाएगा इन सभी चीजों का पिछले 8-9 मंथ्स का, तो वो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। तो दीज यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स।
आई एम सेइंग सो मल्टीपल टाइम्स बिकॉज यहाँ पर सब कुछ फैक्चुअल है, रट्टा करना पड़ेगा एंड उसके लिए मल्टीपल रिविजन चाहिए होते हैं। नाउ सी 2021 में 29 क्वेश्चंस आए थे, 22 में 20 क्वेश्चंस आए थे, तो 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया से। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अब बात करें तो इंडियन पॉलिटी का है, ठीक है, उसमें गवर्नेंस वगैरह सब इंक्लूडेड है। सेकंड पे आता है करंट अफेयर्स, अराउंड 20 क्वेश्चंस। तो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस, 40 to 45 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स और पॉलिटी से आएंगे। फिर आपका आता है सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड योर ज्योग्राफी, ठीक है, इसमें से आप एक्सपेक्ट करोगे अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन। फिर आपका आता है इकोनॉमी, अराउंड 10 क्वेश्चंस। देन आपका आता है एनवायरमेंट, अराउंड 8, ठीक है, एंड फाइनली आपका साइंस, ये वही 8 to 10। तो ये आपका ओवरऑल पिक्चर रहने वाला है। सो यू विल बी सेग्रीगेटिंग योर रिमेनिंग डेज अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस। नाउ अब आपने एक बार रिवीजन कर लिया इन सब चीजों का, तो अब आपने साथ साइमल्टेनियसली पीवाईक्यूज करने, ठीक है। पीवाईक्यूज कौन से पीवाईक्यूज करने हैं आपको? पीवाईक्यूज एक तो आपका ओपीएससी के जो भी आपके पास 2011 से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो आप भी आपको लगता है कि यस ये स्टैंडर्ड जो अब प्रेजेंट है ओपीएससी का उससे मिलता जुलता स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, सो यू विल बी डूइंग दैम। You can expect certain questions to be repeated. You can also solve UPSC prelims questions, ठीक है। तो आपके पास बुकलेट होगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है, उससे आप रेफर कर सकते हो, बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर इज ग्रेजुअली मर्जिंग विद यूपीएससी प्रीलिम्स। तो दोनों सोर्स आप कर सकते हो, बट जो प्रैक्टिस करोगे अब तो उसके दो ही सोर्स रहेंगे, या तो पीवाईक्यूज रहेंगे या आपका एफटी प्लस की टेस्ट सीरीज रहेगी। इवन इन योर एफटी प्लस टेस्ट सीरीज देर आर पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट, आप वो भी कर सकते हो। उन पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट में वी आर नॉट ओनली कवरिंग योर ओपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बट यूपीएससी ऑल्सो, सीडीएस ऑल्सो, एनडीए ऑल्सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बहुत ही मैंडेटरी एक्सरसाइज है, मैंडेटरी एक्सरसाइज है, तो ये मस्ट है, राइट। नाउ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर अपना आता है टेस्ट। अब टेस्ट कौन से देने हैं आपके? एफटी प्लस की टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है। तो देर आर इन द एक्चुअल टेस्ट सीरीज देर आर 50 टेस्ट, 50 टेस्ट है, सो दे आर मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा करने की नीड नहीं है। तो 50 टेस्ट में कैसे है अपना क्या है? सो वी हैव डिवाइडेड द एंटायर these 50 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जांपल जो पहले 6 टेस्ट हैं दे आर ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स हिस्ट्री, ठीक है। अब कैसे? एक टेस्ट आपका एंशियंट पे हो गया, एंशियंट एंड मेडिवल पे हो गया, एक मॉडर्न पे हो गया, एक ओडिशा स्पेसिफिक हो गया, फिर एक टेस्ट ओवर फुल सिलेबस हिस्ट्री का हो गया, एक टेस्ट आपका पीवाईक्यूज का हो गया। तो ऐसे ये हैव गिवन एवरी सब्जेक्ट, हिस्ट्री को 6 दे दिए, ज्योग्राफी को 6 दे दिए, पॉलिटी को 6 दे दिए, बीच बीच में वी हैव इंक्लूडेड करंट अफेयर्स टेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे टेस्ट हैं शुरुआत में, उसके बाद एंड ईच टेस्ट इज ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ ओपीएससी स्टैंडर्ड। देन वी हैव आल्सो इंक्लूडेड योर फुल दिस सीसेट टेस्ट, सीसेट टेस्ट है सेक्शनल भी और फुल लेंथ टेस्ट। एंड फाइनली वी हैव द योर फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ जीएस एंड सीसेट। तो ऐसे करके 50 टेस्ट वी हैव देयर, सो दिस 50 टेस्ट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पर आपके आइडिया क्या होना चाहिए इन टेस्ट के थ्रू? तो योर टास्क, दो टास्क होने चाहिए। एक तो आप अपना परफॉर्मेंस एवेल्युएट करोगे, सेकेंडली यू विल बी ऑल्सो गेनिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने टेस्ट दिया, मेरे कितने मार्क्स आए मैंने वो देखा और बस काम खत्म, नो। सो यू विल बी फोकसिंग कि मैंने जब पेपर दिया, एक चीज तो हो गया मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, दूसरा उसको उसका एनालाइज करना कि मेरा कौन सा एरिया स्ट्रोंग लगा, मुझे कहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही थी, मैं रिकॉल कर पा रहा था नहीं कर पा रहा था, ठीक है। वो सब मैं बबल्स ठीक से भर पाता हूँ नहीं भर पाता हूँ, मैं टाइम मैनेज सही से कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो वो सब चीजें देखनी है, आपकी वीकनेस एरियाज कौन सा है उसको ऊपर फोकस करना है, एंड यू विल बी आल्सो गेनिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो उसको मैंने या तो अंडरलाइन करना है दैट यू विल आई विल बी रिवाइजिंग दिस, और यू विल बी इनकॉर्पोरेटिंग दैट इनटू योर नोट्स। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस,
ठीक है। सो द स्टैंडर्ड हमने बिल्कुल थोड़ा सा हायर ही रखा है, मोर देन ओपीएससी, tilted towards UPSC. So these kind of questions, as you can see on your screens, we have included in the test series. So below each and every question, their explanation has been provided. So you have to, it is mandatory for your people to refer to that. उससे भी questions आ सकते हैं, ठीक है। So all types of questions, analytical, factual, different pattern, or the numerical based options, reason assertion, how many type, match the following. हर type का हम the type of the question, factual, analytical, we have included in our test series. So apart from this 50 test, we have also started recently 13 full length test. So if you haven't got this 50 test, if you haven't purchased these 50 tests, you can also go to the 13 mock level test, full length, full FLTs. You can purchase those, ठीक है। सो दे आर अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल प्राइसेस। तो उससे क्या होगा आपको ना, लाइक रियल एग्जाम, actual exam, you can give those 13 mock tests that includes both your GS and CSAT, ठीक है। So now coming to, we have discussed regarding GS, now coming to CSAT। अब CSAT पे क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, बेसिक न्यूमेरेसी के आते हैं, ठीक है, जो दैट इज योर बेसिक मैथ्स, एप्टीट्यूड के आते हैं। सो दीज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस यू शुड बी अवेयर ऑफ। देन यू शुड रिवाइज द की कंसेप्ट्स, फॉर्मूला हुआ या कुछ भी कंसेप्ट्स हुआ that are important from the CSAT point of view, you should revise them. After revising, you should practice mock papers. तो यहाँ पर mock papers क्या रहेंगे? The only source you have to refer, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। Start with OPSC and FT plus, ठीक है। And if you get the time, you can refer to UPSC PYQs as well, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूँ कि 1 से 2 घंटा लगाना है डेली बेसिस पे। जो वीक हैं वो ज्यादा टाइम लगाएंगे, जिनका स्ट्रॉन्ग एरिया है सी सेट वो 1 घंटा लगा लेंगे, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, ठीक है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस, दैट इज अ मस्ट। नाउ कमिंग टू द लास्ट फाइनल 5 डेज पे हमारा फोकस क्या होना चाहिए? तो आर एंटायर फोकस शुड बी ऑन द लास्ट वीक ऑफ योर, द वीक बिफोर द एग्जाम। योर फोकस शुड बी एंटायरली ऑन रिवीजन। अब यहाँ पर क्या रिवीजन करनी है? द रिवीजन हेयर शुड बी ऑन दोज एरिया जो आपको लगता है एग्जाम में पक्का आने के चांसेस हैं, और ये मुझे क्विकली रिवाइज करनी है, ठीक है। कोई टेबल्स हुई, कोई इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हुए, की कंसेप्ट्स हुए, तो उनको रिवाइज करना, सिलेक्टिव रिवीजन। तो एक तो होगी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन जो आप अभी शुरू कर दोगे, लास्ट में आपका रहेगा सेलेक्टिव रिवीजन, ठीक है। जो आपने, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव मेड सर्टेन नोट्स, ठीक है, सेलेक्टिव नोट्स, उनको रिवाइज करना, राइट। फिर अब इस टाइम पे प्रैक्टिस क्या करोगे? अगेन प्रैक्टिस शॉर्ट क्विजेस, जो एरियाज हमने अभी डिस्कस किए हैं जो बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में, आप उनके ऊपर क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। तो लास्ट में वीक बिफोर द एग्जाम, जैसे 20th आपका लास्ट एग्जाम आप दे सकते हो, मॉक एग्जाम जो आपका वो 20th को दे सकते हो। उसके बाद यू शुडंट गिव एनी मॉक एग्जाम, आप खुद से प्रैक्टिस करो, right? And you will be practicing those areas which have high weightage, they have the probability, high probability of appearing. So you will not be doing any new topic, और तब के करंट अफेयर्स करने की कोई नीड नहीं है। एक पेपर बन चुका होगा तो ये मान के चलो कि सितंबर के बाद का बिल्कुल कोई एक्सेप्शन होगा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो अब करंट अफेयर्स पे भी फोकस करने की नीड नहीं है, तो जो भी पढ़ा है, ठीक है, उतने पे ही हमने ध्यान रखना। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि एंजाइटी, प्रेशर, वो सब चीजें उस टाइम पे पीक करेंगी, तो वो सब चीजों को से दूर रहना है, इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। अच्छे से खाना है, अच्छे से स्लीप लेनी, डोंट टिंकर विद योर ईटिंग हैबिट्स, डोंट टिंकर विद योर स्लीपिंग हैबिट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गिव द एग्जाम यू शुड बी वेरी फ्रेश, वेरी फ्रेश, ठीक है। नाउ ऑन द एग्जाम डे, दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हमारा क्या फोकस रहना चाहिए? हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। तो आपने ये मान के चलना है कि मेरा जो नेट स्कोर है, कैसे ही पेपर आए, लेवल ऑफ पेपर आए, मेरे को 110 के अराउंड मेरे को टारगेट रखना ही रखना है,
ठीक है, तो नेट मेरे 55 to 60 क्वेश्चंस मुझे ठीक करने हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये कितने अटेम्प्ट करने हैं? अब ये तो नहीं हो सकता कि आप 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मेरा 100% एक्यूरेसी आ जाए या 90%, 95% एक्यूरेसी आ जाए। ठीक है, दैट इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। तो योर अटेम्प्ट्स शुड बी मिनिमम 80, मिनिमम आई एम सेइंग। ठीक है, ऑप्टिमल इज अराउंड 85 to 90। ठीक है, सो दैट विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर, डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। कई बार पेपर बहुत इजी आता है तो अटेम्प्ट्स कैन इवन क्रॉस 90, बट 85 to 90, however the level of the paper is, you have to attempt, अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो। अगर कोई सोच रहा है कि 60, 65, 70 अटेम्प्ट करके दे विल बी इन द कंपटीशन, फिर वो एक तलवार लटकने वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ हाउ टू अटेम्प्ट। अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो अभी इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू 4 फेजेस। फर्स्ट फेज, तो यू विल गो थ्रू द पेपर। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर आता है, आपने मार्क किया, और साथ के साथ यू आर मार्किंग इन योर OMR। सो दिस इज द फर्स्ट फेज, जहां पर यू हैव 100% कॉन्फिडेंस कि ये मुझे क्वेश्चन आता है और इसका ये करेक्ट आंसर है। तो आपने उसको मार्क किया, OMR में भी मार्क किया। सो देयर वुड बी अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो अराउंड 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट यू विल एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट कैटेगरी। तो ये हमने 100 क्वेश्चंस एक बार सारे देख लिए एंड आउट ऑफ दैट 40 क्वेश्चंस हमने मार्क कर दिए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे अराउंड, हम अब हम फिर शुरू होंगे। तो 40 तो हट गए, अब बचे 60 क्वेश्चन। अब उन 60 क्वेश्चंस में से अराउंड 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर दो ऑप्शंस में हम फंसे हुए हैं कि आंसर कैन बी बी, आंसर कैन बी सी, आंसर कैन बी ए और आंसर डी। तो ऐसे मतलब 50-50 वाला सिचुएशन चल रही है। सो नाउ एज आई हैव बीन डिस्कसिंग इन द डिस्कशन क्लासेस ऑल्सो, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटेड गैस वर्क करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो 50-50 वाली सिचुएशन है वो कैसे अराइज कर सकती है कि हम रिकॉल नहीं कर पा रहे चीज को, या फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं चीज को लेकर, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो मैंने नहीं पढ़ी है। तो यहां पर आपको अब कैलकुलेटेड गेस वर्क करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो कि मैं बोलता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज यू हैव गेन्ड थ्रू योर प्रिपरेशन। तो उस बेसिस पे यू विल बी मार्किंग द आंसर। ठीक है, तो अब हमने अराउंड 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब जो रिमेनिंग के 15-20 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो कैसे क्वेश्चंस होंगे? वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 3 स्टेटमेंट्स थी तो मुझे एक आती है, दो का मुझे नहीं पता। ठीक है, या फिर 4 स्टेटमेंट्स हैं, दो आती हैं, दो नहीं आती। तो वो वाले टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मेरा फोकस उन्हीं सिर्फ 15-20 क्वेश्चंस पे होगा। और जो बाकी के जो 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, जिनका मुझे बिल्कुल भी एबीसी नहीं पता, उन पे आप नहीं जाओगे बार बार। उस पे आप ये गैस वर्क नहीं करोगे, चलो भाई मैं सब में बी मार्क कराता हूँ कोई तो ठीक होगा, कोई सी मार्क कराता हूँ कोई तो ठीक होगा। प्लीज अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यू विल बी प्लेइंग विद योर सिलेक्शन देन। ठीक है, वो अवॉइड करना है। एंड आई हैव सीन थर्ड थिंग, डोंट गो विद द बायस्ड अप्रोच। व्हाट डज बायस्ड अप्रोच मीन? दैट ये वाला पेपर इतने डिफिकल्टी लेवल का हो। पिछले साल अगर कट ऑफ की रेंज 90-95 रही थी, तो इस बार भी 90-95 रहेगी। इट माइट बी द केस कि 100 क्रॉस कर जाए, 105 क्रॉस कर जाए, या 70-80 पे गिर जाए। दैट विल टोटली डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। तो मुझे ये मान के चलना है दैट दिस इज अ रिलेटिव एग्जाम, सो मेरी जो परफॉर्मेंस होगी इट विल बी रिलेटिव इन द नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। अगर पेपर इजी होगा तो मेरा स्कोर 110 क्रॉस करेगा, अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो जितना भी डिफिकल्ट हो, मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं 100 को टच कर दूं। अगर कट ऑफ भी 80 भी रहने वाली है तो मेरा स्कोर कट ऑफ से 20 ऊपर ही है। ठीक है, then marking in the OMR you will be simultaneously mark again and again, I am repeating। ये नहीं करना कि क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिया आंसर, आई विल गिव लास्ट में 10 मिनट्स, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी।
एक भी OMR अगर आपने गलत मार्क कर दिया और आपने अपना पैटर्न स्किप कर दिया, पूरा का पूरा मार्किंग खराब हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से यू हैव टू मार्क इन द OMR शीट। नो डिस्कशन बिटवीन द पेपर्स। अब क्या है, जीएस खत्म हुआ तो कुछ स्टूडेंट्स आंसर मिलाने लग जाते हैं, कैलकुलेट करने लग जाते हैं स्कोर, सो दैट विल अफेक्ट योर CSAT पेपर। ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत टाइम है आंसर्स मिलाने के लिए। आफ्टर द CSAT यू कैन जितना मर्जी आंसर मिलाने मिला लेना। ठीक है, तो नो, बट बिटवीन द पेपर्स अवॉइड डिस्कशन। एक बार कर दिया, अब उसको चेंज तो कर नहीं सकते। यू आर मैच्योर इंडिविजुअल्स, यू आर एस्पायरिंग टू बी सिविल सर्वेंट्स, तो इतनी मैच्योरिटी दिखानी है कि आफ्टर गिविंग GS1 आई विल फोकस ओनली ऑन CSAT। तो जैसा भी हुआ हो GS का पेपर, तो ये नहीं करना है कि मेरा GS का पेपर अच्छा नहीं गया तो मैं CSAT नहीं दूंगा, या मैं CSAT में अच्छा नहीं परफॉर्म करूंगा। पेपर अच्छे से तो भी देना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू आर एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स। एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ भी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी सिचुएशन में यू वॉन्ट बी परफॉर्मिंग। ठीक है, तो CSAT को पूरा अपने वेटेज देना है, उसको पूरा रिस्पेक्ट देके यू हैव टू अटेम्प्ट, right? So this is what I wanted to discuss this in the entire video. So to summarize, now your focus should be on revision. Key weightage areas we have discussed, the key focus subjects we have discussed, so more priority on those subjects. You will be simultaneously practicing from your PYQs, that is mandatory, and you will also be giving mock tests, your FT plus mock test series, right? So with this, I am ending the session now. Thank you everyone and best of luck for the exam.